students. How are you? I hope all of you will be fine. So let's start next topic, that is present perfect tense. Okay? And in the affirmative sentence of present perfect tense, what should you find? So let's start the topic present perfect tense. In affirmative sentence, first of all, you have to put subject, then this subject may be either singular or plural. If the subject is singular, then you have to put has, and if it is plural, then have. And after that, third form of the verb, and then object or complement. For example, in this type of tense, you will find that the work is accomplished by a moments before. यानी कि आपको इस तरह की सेंटेंस में यह मिलता है कि जो वर्क कंप्लीट हुआ है वो वर्क अभी कुछ समय पहले पूरा हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर हैज taught us this lesson. The teacher have taught us this lesson. टीचर हमें यह पाठ पढ़ा चुके हैं. हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके. एंड इन नेगेटिव सेंटेंस, before third form of the verb, not plus third form of the verb plus object or complement. Example, my friends have not flown the kite. मेरे मित्रों ने काइट पतंग नहीं उड़ाई है. क्लियर? तो यहां पर फ्रेंड्स प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब हैव को यूज किया गया है. आफ्टर दैट नॉट, एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्लो. क्लियर? As you know it, there are two types of interrogative sentence. Interrogative sentence two types के होते हैं. ठीक है? First type, you have to put has and have. If the subject is singular, then has. If the subject is plural, then have. Plus subject, plus not, plus third form of the verb, after that object and complement. Plus question. Plus
mark of interrogation. Example: have players not played Have players not played a cricket match? क्या प्लेयर्स ने एक क्रिकेट मैच नहीं खेला है? एंड सेकंड टाइप W family plus subject plus not plus has or have plus subject plus not plus third form of the verb plus object या complement and after that question. Clear? Example: why has father not brought the vegetables from the market? From the market. Why has father not brought the vegetables from the market? पिताजी बाजार से सब्जियां क्यों नहीं लाए? So this was the tense of present perfect. Clear? Now watch and look at the blackboard. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous. In present perfect continuous, in affirmative sentence, in affirmative sentence, first of all, subject. This subject may be singular or plural. If it is singular, then use has been, and if it is plural, then use have been. Plus third form of the verb. After that, object. Example: object or complement, and here is also a thing, that is time. Time is also mentioned here. टाइम भी यहां पर दिया जाता है. दिस टाइम मे बी टू टाइप्स, दो तरीके का यह समय हो सकता है. आइदर इट इज पॉइंट ऑफ टाइम, या तो ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसको हम निश्चित समय बोलते हैं, या फिर ये होता है पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम
क्या बोलते हैं, जिसको हम ए पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय बोलते हैं। इफ द पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन टू यू, अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है, तो बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव टू यूज द वर्ड सिंस। आपको सिंस को यूज करना है। एंड इफ यू आर गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम देन यू हैव टू यूज फॉर। और अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो आपको फॉर को यूज करना है। आगे बात समझ। तो यहां पर आपको टाइम मेंशन किया जाएगा, तो यहां पर हम लिख रहे हैं, उसके लिए या तो आपको सिंस रखना पड़ेगा या फिर फॉर रखना पड़ेगा और आफ्टर दैट टाइम। ओके, एग्जाम्पल में आपको दिया गया है he has been flying the kite कब से, since 2 o'clock। वह 2 बजे से पतंग उड़ा रहा है, तो यहां पर सिंस को यूज किया है बिकॉज 2 o'clock, 2 बजना, ये निश्चित टाइम है। कैसे ऐसा निश्चित, पूरे दिन में केवल 2 ही बार बजते हैं, या तो दिन में 2 बजते हैं या रात्रि में 2 बजते हैं, और कोई टाइम ऐसा नहीं है जिसमें 2 बज जाएं। तो 2 बजने की जो इवेंट है ये 24 आवर्स में पूरे दिन में 2 ही बार तो होती है, तो 2 बार क्या है, निश्चित है। क्लियर है ना। तो इसलिए 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, ये क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसके लिए हमें सिंस को यूज करना होता है। स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट ही दिया गया है, ही इज सिंगुलर, सो हैज बीन इज यूज्ड हियर, एंड आफ्टर दैट यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर, कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए आईएनजी आएगा। तो ही हैज बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 2 o'clock। क्लियर। नेक्स्ट, इन निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, इन निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, हैज या है दोनों में से कोई एक रख करके फिर आप नोट रखेंगे। ठीक है, नोट के बाद आपको क्या करना है, बीन लगाना है, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, देन सिंस या फॉर, and after that time. For example, the gardener has not been watering the trees for 2 days. The gardener has not been watering the trees for 2 days. गार्डनर 2 दिन से
गार्डनर 2 दिन से पेड़ों में पानी नहीं दे रहा है। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर 2 दिन की बात की गई है, लेकिन कोई दिन यहां पर निश्चित नहीं किया गया है। हमें यह नहीं पता है कि दिन कौन सा है, कौन से 2 दिन है। सोमवार मंगलवार है, मंगलवार बुधवार है, बुधवार बृहस्पतिवार है, ठीक है ना। तो ये हमें नहीं पता है कि दिन कौन से हैं। इसीलिए दिन अगर आ जाए 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन इस तरीके से अगर आ जाए, तो ये तो हम लेते हैं ए पीरियड ऑफ टाइम में, अनिश्चित समय में। और अगर आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम कैसा हो जाएगा, जैसे यही सेंटेंस अगर ऐसे दे दिया जाता, गार्डनर सोमवार से पेड़ों में पानी नहीं दे रहा है, तो वहां पर क्या हो जाता, वहां पर डे का नेम मेंशन कर दिया गया था, डे का नेम आपको क्लियर कर दिया गया था। इसीलिए क्या होता, इसीलिए वो वाला सेंटेंस वहां पर आपको सिंस को यूज करना पड़ता, क्योंकि दिन का नाम अगर आ रहा है तो निश्चित है, और अगर दिन का नाम नहीं आ रहा है तो क्या है, अनिश्चित है। अगर इस तरीके से आ रहा है 2 दिन 3 दिन 4 दिन। क्लियर। अब आप आगे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, you know it very well. Interrogative sentence are 2 types. फर्स्ट टाइप में क्या है, स्टार्टिंग में आपको हैज या हैव रखना है। अगर स्टार्टिंग में क्या शब्द दिया गया है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट अगर दिया गया है तो कर देंगे, अन्यथा नहीं, फिर बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर एंड आफ्टर। Example. Has the teacher not teaching them? Has the teacher not teaching them since Monday? Has the teacher not teaching them since Monday? क्या टीचर उन्हें सोमवार से नहीं पढ़ा रहे हैं? And the second type of interrogative sentence is W family. Has or have plus subject, then not if it is given, फिर बी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, सिंस और फॉर एंड देन। एग्जाम्पल, who has been
for 10 minutes. Who has been calling him at the gate for 10 minutes? उसे 10 मिनट से गेट पर कौन बुला रहा है? Okay, students. So this was the type of present perfect continuous tense, and here you are also given as exercise related to the tense. I will send you just now. Okay, thank you. It is time to over. See you tomorrow. Bye.